पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है। किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? अभी जो हमारे सामने है, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं। किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 साल में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफा आप किसी न किसी किरदार में होते हो। और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ। इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। किरण जी को, हाँ, किरण जी को भी एक्चुअली ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती है आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है। पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है। मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे, किरण जी, मैं उनको बहुत जोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ। तो women always like elderly men? अरे यार, तो मैं तो बड़ा elderly हूँ आजकल। ये आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सीक्रेट है यार। हाँ, day after there's another film on wrestling that's releasing. Hi, Amar here. Yeah, sorry. Shilpa from India today. Sorry. Day after another film on wrestling is releasing, Sultan. Any similarities at all to Dangal that you've noticed? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films, so many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely, and Amar, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of the storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel what, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Amit? No, I have not spoken. But who am I to advise? Recently, Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramadan fasting. He also said Sorry, people should introspect instead of fasting during Ramadan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the day of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So, what is your take on that? I feel religion is a very personal issue. Each one has their own feelings about it, each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. Ahmed, this theme on religion, the Uniform Civil Code, the wheels are in motion. For the Uniform Civil Code, you take up so many socio-political issues and such things. What is your take on the Uniform Civil Code? I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I won't be able to really. That's a long answer. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment.
you know, in all our films हम लोग, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी सच्चाई से लोगों को बताएं फिल्म के बारे में। अब मेरा यंग लुक भी है फिल्म में, हम यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की। कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की 4 बेटियां हैं, उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है। इट्स अ फैमिली फिल्म। So we are being honest with our material. I think in all my films हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें, तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी। वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा। हर चीज में आपको कैसे बता दूं? आप देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आपकी एक बेटी 2 बेटी की बात है। इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है। बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़े, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो वो क्या नहीं कर सकती। यहाँ इंदिरा गांधी, यहाँ बेनजीर भुट्टो और जो हेड ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल है। तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं। धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। Hi, this is मैं आंसर पूरा करता हूँ। I'm sorry, I'm so sorry. तो ना कम है ना ज्यादा है, there is an equality, there should be an equality। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है। ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है। ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज को ले तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नीतीश जी ने, मुझे याद है नीतीश जी और सिर्फ दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में अंदाजा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नीतीश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। आई नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उसमें मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मजा भी आता है, आप कुछ चीजें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नीतीश। अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए। नीतीश जी को भी पूछिए।